Good afternoon, everyone. Welcome to TMC virtual class. Thanks to give me chance to introduce myself. I am Shazia Sheikh from TMC school number 117 Kosa. Today I teach you the English lesson 8 standard 4.5 Festival of North East India. In last session, you learned the first part of the topic and now I will teach you the second part of the lesson. In last session, you understood the different festivals of different states. In that states, Assam, Arunachal Pradesh and Manipur. Now we see the next state and their importance of festival. Now we start the lesson. The Spring Festival or Chapter Coot is an important occasion mostly celebrated in Mizoram. Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear perform folk dances and sing traditional songs on this occasion. Drums, gongs and cymbals add to the festive air. Our first state is Mizoram. What is the famous festival of Mizoram? That is Chapter Coot. That is the festival name is festival. Upcoming or when this festival is celebrated in spring. Spring season means spring comes between winter and summer. In that situation, this festival is celebrated. What happened in this festival? Men and women of all ages wearing ट्रेडिशनल ड्रेस. यहाँ के इस फेस्टिवल में क्या होता है कि यहाँ की जो लेडीज है और जेंट्स है वो यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनते हैं और उसी के साथ साथ हेड गियर पहनते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड गियर? इट मीन्स व्हाट इज ओन ऑन द हेड. हेड पर पहना जाने वाला एक जो पहरावा होता है उनका एक पहरावा कहेंगे हम जिसे, उसे हम कहेंगे हेडगियर मीन्स व्हाट इज ऑन द हेड. हेड पर पहना जाने वाला ये एक इनका लिबास है. परफॉर्म फोल्क डांसेस. अब जहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पीपल्स है वो क्या करते हैं? फोल्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्क? फोल्क मीन्स पॉपुलर. पॉपुलर जो डांस रहता है और उसी के साथ साथ वो ट्रेडिशनल सिंग है, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को वो लोग गाते हैं इस मौके पर. बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके लिए, जो स्टेट के लिए, मिजोरम स्टेट के लिए चैप्चर कूट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल. नाउ ड्रम्स, गॉन्ग्स एंड सिम्बल्स एड टू द फेस्टिव ईयर. यानी कि इसी के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, जो ड्रम्स बजाते हैं. गॉन्ग्स मीन्स द मेटल डिस्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉन्ग्स? गॉन्ग्स मीन्स मेटल डिस्क. Gongs and cymbals add to the festive air. Cymbals it means it is musical instrument. एक musical instrument होता है जिसको वो बजाते हैं और उसी के साथ साथ हवा में बजाकर फेंका जाने वाला भी एक इंस्ट्रूमेंट इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है. एंड नेक्स्ट स्टेट दैट इज मेघालय. Wangala or the 100 Drum Festival is the most important festival celebrated by the Garos in the villages of Meghalaya. This harvest festival is celebrated to mark the end of a period of hard work which naturally brings a good harvest. It means Wangala or 100 Drum Festival. Wangala or 100 Drum. Second name is 100 Drum. Why this festival is called 100 Drum? Because in this festival the people collect 100 drums and beat them. इसके लिए इस फेस्टिवल को 100 ड्रम्स और वंगाला फेस्टिवल कहा जाता है.
और ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और जो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है इन द बाय द गैरोस। गैरोस, व्हाट इज गैरोस? इज अ स्मॉल विलेज ऑफ मेघालय स्टेट। मेघालय स्टेट का सबसे एक देहात है जिसे हम गांव कहेंगे, उस विलेज में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और this harvest festival is celebrated to mark the end of a period of hard work। यानी कि मीनिंग इसको कब वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाया जाता है ये? मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड जो उनका वर्क होता है, यानी कि हार्वेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट? हार्वेस्ट मीन्स द फसल की कटाई का जो वो लोग मनाए जाते हैं, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and other of women, clad in their festive costumes. While the men beat the drums, the lines of dancers move forward together in a rhythmic manner. The dance performed during the festival has two parallel lines. In Mangala festival, people of Mangala that create two parallel lines, one of men and other of women। दो पैरेलल लाइन को वो लोग क्रिएट करते हैं और ऐसा डांस वन ऑफ मैन की होती है और सेकेंड वन इज वुमेन की होती है। और वो क्लैड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैड? क्लैड मीन्स कवरिंग, क्लैड इन देयर फेस्टिव कॉस्ट्यूम्स, और वो लोग फेस्टिव कॉस्ट्यूम्स को पहनते हैं। मीनिंग ऑफ क्लैड इज कवरिंग। कवरिंग और उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसको वो लोग पहनकर इस सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। While the men beat the drums, the lines of dancers move forward together in a rhythmic manner। It means यहाँ के जो लोग हैं, वो जो मेन है वो क्या करते हैं, ड्रम्स को बीट करते हैं और द लाइन्स ऑफ डांसर, यानी कि जो डांसर्स की जो लाइन होती है, जो उनके स्टेप होती है डांस की, उसको वो मूव फॉरवर्ड टुगेदर इन अ रिथमिक मैनर। व्हाट इज द मीन ऑफ रिथमिक मैनर? मीन्स रिपीटिंग पैटर्न। उसी डांस स्टेप के पैटर्न को वो लोग रिपीट करते हैं और मूव फॉरवर्ड टुगेदर, एक साथ आगे पीछे होने का स्टेप उनका होता है डांस का, इसको परफॉर्म करते हैं और बहुत ही दिलकश अंदाज से वो लोग इस सेलिब्रेशन में शरीक होते हैं। सब लोग इसको अटेंड करते हैं, ज्वाइन होते हैं। ऑल द पीपल ऑफ वंगाला, वंगाला इस फेस्टिवल में और 100 ड्रम फेस्टिवल में यहाँ मेघालय स्टेट के जो लोग हैं, वो गैरोस विलेज के जो लोग हैं, उसमें वो सब लोग ज्वाइन करते हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो डांस है वो रिथमिक मैनर में लिया जाता है। नाउ मूविंग बिफोर द नेक्स्ट पैरा, आई आस्क यू क्वेश्चन अबाउट डिपेंड अपॉन दिस पैरा। How do the villagers dance during the Wangala festivals? It means वंगाला फेस्टिवल में यहाँ के लोग डांस को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से डांस करते हैं। तो आंसर इसका आएगा, द डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल हैज टू पैरेलल लाइन, वन ऑफ मैन एंड अदर ऑफ वुमेन। और इस तरह से वो लाइन्स ऑफ डांसर मूव फॉरवर्ड टुगेदर इन अ रिथमिक मैनर, रिथमिक मैनर में होके वो इस तरह से डांस को परफॉर्म करते हैं। नाउ वी मूव द नेक्स्ट पैरा। The next state is Tripura. The main feature of festivals in Tripura is that all the people join in the celebrations. Many of the dances performed during the sum of festivities represent hunting, fishing, food gathering, and various other activities. It's mean त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ की बात है वो है कि यहाँ के लोग ऑल पीपल ज्वाइन द सेलिब्रेशन, यानी कि हर कोई, यहाँ के हर एज के लोग, जो लोग ज़्यादा ओल्ड वाले हैं, यंगर भी, ओल्ड एज वाले भी, सब लोग इस
इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। मेनी ऑफ द डांसेस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे डांस इसमें किए जाते हैं, जिसमें कि होता है हंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंटिंग? हंटिंग मीन्स शिकार। उसके बाद आएगा मेनी डिफरेंट टाइप्स डिशेस दे आर मेड एंड गैदर टुगेदर, एंड इसके अलावा वेरियस एक्टिविटीज भी वो लोग किया जाता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को शामिल करके इस त्योहार को मनाया जाता है। द त्रिपुरा का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दैट इज हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। दिस थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस फेस्टिवल। नाउ some of the festivals attract people from all over India। यानी कि इनके फेस्टिवल्स को देखते हुए यहाँ पीपल, इंडिया के पीपल बहुत से अट्रैक्ट होते हैं और इन सेलिब्रेशंस को देखने के लिए आते भी हैं कुछ लोग, और इनको देखा करते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग इनके फेस्टिवल्स को देखकर। Now, what do the dances in Tripura festivals stand for? What do the dances? That means क्या डांस किया जाता है त्रिपुरा के इस फेस्टिवल्स में, और क्या क्या एक्टिविटीज होती है? सो आंसर इज ड्यूरिंग सम ऑफ द फेस्टिविटीज रिप्रेजेंटिंग हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ and next state, that is Nagaland. Now we see the most important festival of Nagaland. Nagaland consists of different groups of people who are unique in their customs and traditions and the festivities they celebrate. नागालैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ के जो पीपल हैं उनका डिफरेंट एक ग्रुप है, वो आर यूनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक? इट मीन्स नॉट लाइक एनीथिंग, यानी कि इन जैसा कोई नहीं, यानी कि किसी के जैसा नहीं। यूनिक मीन्स मोस्ट पॉपुलर, एंड एक ही होता है, वो सिर्फ ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है, एक ही होता है, यूनिक होता है। नॉट लाइक एनीथिंग इन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में उनके जैसा कोई नहीं है नागालैंड के पीपल्स की तरह। Songs and dances perform the soul of these festivals through which their oral history is passed down. अब जो यहाँ के लोग हैं वो कस्ट्यूम्स पहनते हैं, और जो ट्रेडिशनल फेस्टिविटीज़ होती हैं उनकी, जो भी ट्रेडिशनल तरीके से उनके फेस्टिवल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उसको वो लोग करते हैं। और साथ ही साथ सॉन्ग्स एंड dances form the soul of this festival through which their oral history is passed down। यानी कि इनके जो पहले से चले आ रही है रस्म और रिवाज, जो उनके लोग, जो पहले के उनके लोगों ने किया है, उसी को वो आगे बढ़ाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, और जो उनकी हिस्ट्री है उसी को देख के वो लोग उनके तरीकों को फॉलो करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। A major festival is most celebrated mainly in the villages after the sowing season, dressed in colorful clothes and headgear decorated with feathers and wild boar tusks. The villagers dance to traditional music. A major festival is Mostu. What is the what is the main festival of Nagaland state? That is Mostu. Mostu यहाँ का सबसे मेजर फेस्टिवल है और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का, और लोग, यहाँ के लोग, इसमें बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारे विलेजेस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द सोइंग सीजन। सोइंग सीजन मीन्स जिसको हम पेरना कहेंगे, बीज बोने का जो वक्त होता है, उस वक्त ये लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ड्रेस इन कलरफुल क्लॉथ्स एंड हेड गियर, ये लोग यहाँ कलरफुल ड्रेस को पहना करते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो उसी को पहनकर ये लोग डांस किया करते हैं। और हेड गियर, इन अबव पैराग्राफ आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ हेड गियर। हेड गियर को डेकोरेट किया जाता है विथ फीदर्स एंड वाइल्ड बोर टस्क। वाइल्ड बोर मीन्स द वाइल्ड पिग, और उसके जो टस्क होते हैं, टस्क मीन टीथ, टस्क मीन्स टीथ।
उसके जो टस्क होते हैं वाइल्ड पिग के, उसको वो लगाते हैं और कुछ फीदर्स को भी लगाकर वो लोग हेड गियर को डेकोरेट किया जाता है। द विलेजर्स डांस टू ट्रेडिशनल म्यूजिक, और इसी के साथ साथ उनका जो ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है उसको भी वो लोग इसी में लगाते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं। ओके, now going to the next para, I ask you one question depend upon this para. When is Mostu celebrated? When is Mostu celebrated? So answer is a major festival is Mostu celebrated mainly in the villages after the sowing season. Okay. सोइंग सीजन में बहुत ज्यादा इसको सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टू इस फेस्टिवल को। ओके, नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Hardly a month passes in any of the 7 states without a festival or two. Most of them have a religious importance or significance. It means hardly a month passes in any of the 7 states without a festival or two. एक भी यहाँ का एक से या दो महीने सिर्फ यहाँ गुजरते हैं जब यहाँ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। मोस्टली यहाँ पर 10 मंथ फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कंटिन्यू यहाँ पर फेस्टिवल आते रहते हैं और ये लोग उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। यहाँ के जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल्स है, उसको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस जिसे हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा उनके लिए वो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखते हैं। इसलिए वो फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से और उन पूरे तौर तरीकों से मनाते हैं। ओके, as the people offer thanks to the gods for a good harvest, to prosperity, or ask for protection against calamities. यहाँ के जो लोग हैं वो गॉड को थैंक यू कहते हैं क्योंकि गॉड ने इनको इतना अच्छे सेलिब्रेशंस, इतने अच्छे फेस्टिवल्स के लिए इनको चुना है और इनके जो रिलीजन में ये सब त्यौहार है इसके लिए वो गॉड को थैंक्स कहते हैं। और फॉर अ गुड हार्वेस्ट, टू प्रॉस्पेरिटी, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलामाइट्स, और आस्क फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलामाइट्स। इट्स मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलामाइट्स? इट्स मीन disasters, means difficult event. Calamites. Calamites, it's mean difficult events. तो यहाँ के लोगों का इस तरह मानना है कि हम जो फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं कि इसकी वजह से हमारा जो भी डिफ़िकल्ट इवेंट है, जो हार्ड टाइम है, वो पास हो जाता है और कुछ हार्ड टाइम उनके ऊपर नहीं आएगा। इसके लिए ऐसा उन लोगों का मानना है और इसी के लिए वो हर फेस्टिवल को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बट दीज सेलिब्रेशंस ऑल्सो हेल्प्स टू एनकरेज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। यानी कि जो यहाँ के सेलिब्रेशंस जो है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को इनकरेज किया जाता है, लोगों को इनकरेज होता है और वो कल्चरल एंड आर्टिस्टिक, यानी कि आर्टिस्टिक एक्टिविटीज मीन्स कनेक्ट टू आर्ट, आर्टिस्टिक 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 एक्टिविटीज मीन्स कनेक्ट टू आर्ट, यानी कि आर्ट से कनेक्ट रहने के लिए लोगों को इन एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है, इन सेलिब्रेशंस में इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ के जो ये स्टेट है 7 स्टेट, तो ये स्टेट्स जो है
वहाँ इसका सेवन स्टेट्स, दैट इज 7 स्टेट इन दिस. फर्स्ट इज आसाम, second one is Arunachal Pradesh, third is Manipur, and fourth is Mizoram, fifth is Meghalaya, fifth and sixth is Tripura, and seven is Nagaland. In these seven states called seven sister states because of their different traditional and their different festivals. Okay, now and bring these celebrations also help to encourage cultural and artistic activities and bring out the natural talent of the people. यानी कि इसका मतलब है जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से लोगों को आर्ट से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड ब्रिंग आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग आउट? इट मीन्स ब्रिंग आउट टू डेवलप एंड प्रेजेंट टू पब्लिक. Bring out, it means to develop and present to public. Out and bring out the natural talent of the people. तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आर्ट से, अपनी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज से और अपने टैलेंट को बाहर लाते हैं, लोगों के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है. और इसी तरह ये लोग इस सेवन सिस्टर्स में इस फेस्टिवल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दैट्स व्हाई this 7 states is called seven sisters states. Now I ask you one question depend upon this para. Why are festivals so important in the seven sister states of Northeast India? It means why are the festivals so important, यानी कि यहाँ पे इस फेस्टिवल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये लोग इन सेवन सिस्टर स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसे हम ईशान्य भारत कहेंगे इसमें ये फेस्टिवल्स को क्यों मनाया जाता है और क्या इम्पोर्टेंस है. सो आंसर इज these celebrations also help to encourage cultural and artistic activities and bring out the natural talent of the people. यानी कि इनका ऐसा मानना है कि हम लोग इस फेस्टिवल को मनाएंगे तो हमारा जो डिफिकल्ट इवेंट है, जो कैलेमाइट्स है, वो नहीं आएगा, वो हमसे दूर हो जाएगा, या फिर अगले अगले कुछ सालों में हमारे ऊपर वो डिफिकल्ट इवेंट नहीं आएगा. इसके लिए ये लोग और इनकरेज होते हैं. और उसी के साथ साथ कल्चरल और आर्टिस्टिक इनकी एक्टिविटीज होती है, जो पीपल का नेचुरल टैलेंट होता है उसको ब्रिंग आउट करना इनका वर्क होता है. इसके लिए इस सेलिब्रेशंस को वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं और इसीलिए इस फेस्टिवल को वो लोग, इन सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, thanks to watching my lesson and I hope you understood meaning of all festival we celebrated in different and other states. Thank you.